Hello everyone. This side Poonam Grover from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I start with my lecture number 22, which are came under Unit 3. I think that is the last lecture for your Unit number 3 completion. And in my today lecture, I will discuss the various concept of digital communication, and you can say various topic cover which is based upon your digital communication, and it is useful for ETC 6 semester students. Clear? So today in my lecture I will cover various topic, that is response of bank correlator to noise input and detection of non-signaling noise, and the other one is Gram-Schmidt orthogonalization procedure. So that topic is very much important for you. So according to that topic we can calculate the noise as per your received signal. After you can say you can find some likelihood function, and with the help of that likelihood function you can calculate the noise at your receiver side. But in Gram-Schmidt orthogonalization function you find the you can say mathematically representation of a signal with the help of your orthonormal and orthogonal properties. So we are discussing in detail in my upcoming slides. So here we mention you can say the response of bank correlator and plus your you can say here we mention a response of bank correlator to noise input and detection of non-signaling noise. So according to this phenomena, I can write here response of bank correlator. So this is nothing but bank of correlator. At your receiver side you can use various number of product modulators and integrators. So the bunch of this integrator and your you can say you can use various LPF filters, or you can say integrator product modulator for demodulate your signal, or you can say receive the signal. Clear? So the we can proper discussion on your receiver side correlators. Clear? So when your signal coming from your input from your, if you transmit the signal from a transmitter, and you can discuss the one block of your receiver, you can receive the signal first, and that signal is multiplied with your basis function, and after it will apply to do some integrator and then your LPF filter, and finally you recover the signals here. So in that case also we can receive signal at a time t with the अब जो रिसीव सिग्नल आपने रिसीव किया है वो आपका क्या होगा, एक सिग्नल होगा रिस्पेक्ट टू टाइम आई, सॉरी रिस्पेक्ट टू टाइम टी। एस आई उस सिग्नल की वैल्यू है कि उस सिग्नल को आप S1 S2 या S3 कौन सा सिग्नल उस रिसीव सिग्नल से आप रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि अब आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, आपने सब बैंड थ्योरी पढ़ी हुई है, तो एज पर दी सब बैंड थ्योरी we can divide our whole of the band into several band, but at the receiver you can contain number of bands and then combine it to recover your original one. So in that case we use here signal with coming with your noise. क्लियर? ये जरूरी नहीं है कि जो आपको रिसीव सिग्नल मिले वो बिल्कुल प्योर हो, उसमें कुछ नॉइज भी हो सकती है. सो दैट WT is called your wide Gaussian noise. Clear? Automatically that should be come in your signal, but everything you can know about your AWGN in my previous slides. AWGN is a wide Gaussian noise with having zero mean, and PSD you can say power spectral density function means your noise variance is n0 by 2. Clear? It means उसकी जो मीन वैल्यू होगी, अगर हम उन नॉइज का लाइक स्टेटिकली मीन निकालें तो वो जीरो होगा, और अगर उनका पावर डेंसिटी फंक्शन निकालें तो दैट विल बी वेरी विद n0 by 2, यू कैन से प्लस माइनस n0 by 2. क्लियर? तो उसने क्या किया, वही सेम किया जो आपने रिसीव सिग्नल आर टी यहाँ रिसीव किया है उसको किसी बेसिस फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 5j t इंटू में dt. क्लियर? देन क्या किया, उस फंक्शन को उसने 0 to t तक किसी टाइम इंटरवल तक क्या किया है, इंटीग्रेट किया है. क्लियर? अब हमें पता है कि हमारा r of t क्या है, दैट इज SIT इंटू में सम नॉइस. सो हियर वी मेंशन इन प्लेस ऑफ RT SIT प्लस में WT इंटू सम बेसिस फंक्शन 5j t इंटू में dt. क्लियर? ठीक है? तो उसने ये बोला है एज पर द कैलकुलेशन ऑफ योर रिस्पॉन्स ऑफ बैंक कोरिलेटर्स. क्लियर? सो वन थिंग इज मेन इंपॉर्टेंट हियर, द SIJ, the received signal which we are getting one by one, like S11 S12, here we mention SIJ, I1 भी हो सकता है, 12 So as per the metric series you can divide the signal in various parts. Clear? So here we mention SIJ with WJ. Clear? So here we write here the SIJ is deterministic signal.
It means that should be not having memory or not memory. That depends upon your either deterministic signal or you can say non-deterministic signal. Clear? So here we mentioned deterministic. It means that should be included with your memory part, or you can say not include with your memory part. तो इसका कोई भी लाइक मेमोरी के अंदर है, मेमोरी पे डिपेंड नहीं करता है ये चीज, ठीक है। तो उसने क्या किया आगे, अब उसने कुछ टर्म्स को स्पेसिफाई किया है जो आपने पहले यूज की हैं। आज जो आपका आर ऑफ टी है जो आपने यहाँ मेंशन किया है, दैट इज जो रिसीव, दैट इज अ गॉसियन रैंडम प्रोसेस। इट मींस एक पूरा सिग्नल मिला है जिसके अंदर आपकी गॉसियन नॉइज क्या है, प्रेजेंट है। तो उसने उस सिग्नल को क्या बोला है जो आपने रिसीव टाइम टी पे किया है, दैट इज कॉल्ड योर is a Gaussian random process. Clear? So another thing, RJ is a Gaussian random variable which we can get after your you can say receive the signal. Clear? Next, RJ is characterized by its mean and variance. अब जो हमें एक random variable मिला है in the form of noise, उसका कुछ मीन होगा और उसका क्या होगा, कुछ वेरिएंस होगा। क्लियर? तो उसका जो मीन है दैट इज इक्वल टू 0। आई थिंक मैंने ये पहली चीजें भी बताई हैं। और जो उसका वेरिएंस है वो क्या है आपका, लाइक आरजे इज कैरेक्टराइज, जो आरजे है रिसीव्ड सिग्नल है उसको भी हम मीन और वेरिएंस के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज करेंगे, और जो हमारी वाइट गॉसियन नॉइज है उसको भी हम मीन और वेरिएंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे। तो आपने जो चीजें यहाँ पहले लिखी हैं सिंपली उन चीजों का दैट कैलकुलेशन, उन चीजों की हमने क्या लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए कि हमारी अगर हमारे सिग्नल में कोई वाइट गॉसियन नॉइज ऐड हो जाती है, ये मुझे नहीं पता कि वो किस पॉइंट पे ऐड हुई है, इधर S1 में ऐड हुई है, S2 में ऐड हुई है, S3 में ऐड हुई है, या आर जे में ऐड हुई, आर जे लिखते हैं तो R1 में ऐड हुई है, R2 एंड R अप टू RG, किसी भी सिग्नल में नॉइज ऐड हो सकती है। तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी किसी पर्टिकुलर नॉइज के ऊपर। जैसे RJ पे, RJ कोई रैंडम वेरिएबल है दैट इज हैविंग बिटवीन योर R1 R2 एंड Rn, इसमें से कोई वेरिएबल लिया है उसने जिस जो कि आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें कोई RJ आपकी वैल्यू आती है इन रैंडम वेरिएबल्स के अंदर। क्लियर? तो आपने जब आरजे लिया है कोई रैंडम वेरिएबल, उसकी जब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली तो इस पूरी टर्म्स की क्या लग जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू लग जाएगी ई एस आई जे प्लस में डब्ल्यू जी। अब आपने बोला है कि जो वाइट गॉसियन नॉइज है उसका मीन कितना है, 0 है। इट मीन्स एवरी नॉइज, यानी कि अगर आपके, अगर आपको अगर आपने लाइक नंबर ऑफ सिग्नल लिए हैं S1 1 1 2 1 3 और आपको नॉइज हर सिग्नल में ऐड होके मिल रही है, ठीक है, तो उनका जो मीन आएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पे मीन वैल्यू क्या रखी है, 0 है। अगर उस मीन वैल्यू को 0 रखते हो तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या मिलेगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज एस आई जे विच इज योर मैसेज सिग्नल, और ये कैसे यहाँ पे जो भी सिग्नल मिलेगा दैट इज सेम एज योर मैसेज सिग्नल विदाउट नॉइज, विद द स्टैटिकली मीन। मतलब हम ये नहीं कह सकते नॉइज पूरी तरह से रिमूव हुई है। ये फंडा तभी आया है जब आपने एवरी थिंग शुड बी काउंट एज पर योर स्टैटिकल मीन। क्लियर? नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, आप देखेंगे कि अगर नॉइज जो है वो आपकी स्टेशनरी है या रैंडम है। क्लियर? अगर तो वो स्टेशनरी है, कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, एज पर माई थ्योरी उसने क्या किया है, सॉरी वन स्लाइड इज मिस हियर। सो नाउ अगर पहले आपने मीन नीला मीन 0 लेकर चलते हो और वेरिएंस क्या है आपका, दैट इज योर आरजे का अगर वेरिएंस निकालो, उसी वाइट गॉसियन नॉइज जो रिसीव्ड सिग्नल है उसका वेरिएंस निकाला, तो आपको उस वेरिएंस को शो करोगे सिग्मा आरजे स्क्वायर से। ठीक है? तो एज पर माय एनालिसिस आरजे आपका क्या आ रहा है, अगर देखा जाए एज पर माय प्रीवियस थ्योरी, हियर आरजे क्या है आपका, एस आई टी इंटू में डब्ल्यू टी। ठीक है? एस आई टी इंटू में डब्ल्यू टी, दैट इज कॉल्ड योर आरजे। क्लियर? तो यहाँ क्या किया उसने, अगर वो यहाँ से आरजे में से एस आई जे माइनस कर देगा तो उसका यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका डब्ल्यू जे आ जाएगा विच इज कॉल्ड योर नॉइस। क्लियर? सो वही सेम आपने पहले लिखा था दैट एस आई जे प्लस डब्ल्यू जे इज इक्वल टू योर आर जे। तो आप एस आई जो को इस तरफ ले आए तो यहाँ इक्वल टू पे किसी वैल्यू रह जाएगी, डब्ल्यू जे स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने सिंपली कुछ नहीं किया, आर जे की वैल्यू यहाँ पुट की है विद द हेल्प ऑफ योर वेरियंस की वजह से यहाँ पे उसने क्या कर दिया, स्केयर कर दिया। अब जब इसको स्केयर किया है तो अगर इस टर्म्स को हम यानी कि नॉइस की टर्म्स को हम खोल के लिखेंगे तो उसको इस रूप में लिखा जाता है। ठीक है? इट मीन्स क्या है कि हमारा कोई डिफरेंट नॉइज है, लाइक जैसे आपने आरजे लिया तो
अगर आरजे का कोई सीक्वेंस, आरजे कोई R1 R2 और R3 में कोई आरजे कोई आपका एलिमेंट है, तो आपका एलिमेंट RJ भी हो सकता है, RM भी हो सकता है, RT भी हो सकता है, कुछ भी मान के चलिए। तो जितने नॉइज सिग्नल रिसीव होंगे, सपोज दैट इज नॉइज सिग्नल वन WT, अदर इज WX, क्लियर, विद बेसिस फंक्शन 5J इसका, और इसका क्या हो जाएगा अगेन 5J। ये रिस्पेक्ट टू टाइम T है और ये रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है आपका X है, क्लियर। तो आपने उसकी क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर डी यू, क्लियर। देन आपने क्या किया, यहाँ से बेसिस फंक्शन को मल्टीप्लाई किया 5J T इंटू में 5J X, और यहाँ से आपने ओरिजिनल वन को मल्टीप्लाई किया WT इंटू में WX, इंटू में इसका रिस्पेक्ट टू डी यू किया था और इसका रिस्पेक्ट टू क्या किया था, DT किया था। मैंने वो दोनों फंक्शन लिख दिए हैं। अब क्या करोगे आप, दोनों के इंटीग्रेशन को आपने इकट्ठा किया है। नाउ द इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड एक्सपेक्टेशन वी गेट, जब आप इंटरचेंज करोगे तो आपको इंटरचेंज करने पर बेसिस फंक्शन तो वैसे ही मिलेंगे, लेकिन जो आपके वाइट गॉसियन नॉइज है दैट इज अ फंक्शन ऑफ योर, you can say autocorrelation function, clear, that is show by your r u is a function of t and x here. It means that value should be equal to your autocorrelation function, you can say random or autocorrelation function. इस पूरे को उसने रैंडम को ऑटोकोरिलेशन फंक्शन में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, क्लियर। अब क्या किया है उसने, उसने जो फंक्शन आपका रैंडम ऑटोकोरिलेशन की फंक्शन की फॉर्म में है, दैट इज आर यू इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड यू, सो that function is equal to your ru t minus u. It means that will be equal to your simple impulse function. So that thing is remember very clearly, your random autocorrelation function will be equal to your impulse function here, clear, ठीक है। If you as per the probability density function, the impulse function with variance that is equal to your n0 by 2, which we discussed in my previous topic. So here we mention again that it will be equal to your impulse function. So n0 2 by, that is your additive noise process with white with probability density function that is equal to n0 by 2 into में impulse function. तो आपने यहाँ से ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को इसमें चेंज कर दिया है, लाइक इसमें आपके इम्पल्स फंक्शन में। तो हमारी जो प्रीवियस कैलकुलेशन थी उसमें हमने मीन वैल्यू को 0 पुट किया है। अब इस कैलकुलेशन के लिए हमें वेरिएंस निकालना था, तो हमने वेरिएंस निकालने के लिए अगर आप सपोज करो कि एक नॉइज 1 है एक नॉइज 2 है, तो उनके बीच का ही वेरिएंस निकाल पाओगे। अगर आपने एक्सटर्नल S1 लिया है S2 लिया है तब भी उसके बीच का वेरिएंस निकाल पाओगे। तो उसने उसी फॉर्म में दो बेसिस फंक्शन ले लिए और उनका क्या निकाला है यहाँ पे, एज पर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन वेरिएंस निकाल लिया, क्लियर। तो उसने सिंपली क्या किया है, उसी फंक्शन के अंदर जो आपका पहले वाला लास्ट एक टर्म आई है दैट वन, इस फंक्शन के अंदर अगर हम लिखें दैट इज इक्वल टू योर इम्पल्स फंक्शन, तो मैंने इस इक्वेशन को लिख लिया डेल टी माइनस यू, जहाँ पे आर टी माइनस यू लिखा हुआ था, ठीक है। और आर टी माइनस यू की वैल्यू अभी आपने निकाली है दैट इज इक्वल टू योर एन जीरो बाई टू डेल टी माइनस यू, तो वो लिख लिया उसने, ठीक है। तो जब t इज इक्वल टू यू होगा तो ये वैल्यू टोटली क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, क्लियर है। तो ओनली क्या बनेगा आपका यहाँ पे, अगर t इज इक्वल टू यू है तो dt इज इक्वल टू du बन जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 5g स्क्वायर हो जाएगा, और जो वेरिएंस की टर्म्स थी यहाँ पे वो आपकी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, क्लियर। तो इस तरह है, अगर आप इस पूरी क्वेश्चन को समराइज करें तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका वेरिएंस आया है for every noise which should be present in your signal, that will be equal to your n0 by 2. It means अगर आप किसी भी प्लेस से काउंट करो तो उसका जो टोटल वेरिएंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा आपका n0 by 2, क्लियर। So everything must be came under this phenomena whenever the any noise present in the signal statically it will be show by your zero mean, and if it will be randomly it will be show variance will be show by your n0 by 2, clear. So after it you can calculate your likelihood function. So what is the need of that likelihood function? So as per the need of your likelihood function, you can calculate the signal will in a more clearly manner should we receive the signal. So here we mention, so basically a likelihood function, its another name is called a conditional probability, clear. जैसे सपोज कीजिए कि आपका एक सिग्नल यहाँ पे आपने आर रिसीव किया था जिसका वेक्टर क्या है आर, आर स्केलर की फॉर्म में शो किया हुआ है। तो आपने कोई मैसेज सिग्नल उठाया, उसके ऊपर मैसेज सिग्नल हमारा क्या है, सिंपली कोई सिग्नल है एसआईटी, क्लियर। तो आपने क्या किया,
अब आपने बोला है कि जो आपका मैसेज सिग्नल है दैट शुड बी मेमोरी इंडिपेंडेंट, यू कैन से मेमोरी लेस चैनल है, क्लियर। वो आपका मेमोरी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्लियर। तो अगर वो मेमोरी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम ये मान के चलेंगे, जैसे हम सिग्नल लेते हैं R1 R2 R3, तो अगर आप R1 की कैलकुलेशन कर रहे हो तो R1 का R2 के ऊपर कोई फिट नहीं जाएगा, देन R2 का R3 के ऊपर कोई फिट नहीं जाएगा, दैट इज अ नंबर ऑफ सीरीज ऑफ सिग्नल, क्योंकि आपने ये बोला कि वो क्या है, आपके मेमोरी लेस सिग्नल है, क्लियर। तो आपने सिंपली कुछ नहीं किया यहाँ पे, उस टर्म को पूरा ओपन किया फ्रॉम J2 1 to N, आर को आपने कोई लिया है R1 R2 और अप टू एम तक आरजे का, आरजे कोई कंपोनेंट है आपका, एज पर ये मैसेज सिग्नल MI, ठीक है। तो उसका अगर आपने पीडीएफ निकाला है अभी, तो आपने अभी निकाला है कि जो भी आप पीडीएफ लेके चलते हो तो आपका क्या आता है, एज पर योर वेरियंस N0/2। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर IJ, क्लियर। तो ये वैल्यू आपकी फाइनल में आ जाएगी विद सम एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस ऑफ RJ माइनस SIJ का स्क्वायर बाय में 2 सिग्मा स्क्वायर RJ। सो आपने इस लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू को क्या करना है, याद रखना है। तो इस लाइक्लीहुड फंक्शन दैट शुड बी कैलकुलेट योर नॉइज, और यू कैन से रैंडम गॉसियन नॉइज, दैट इज FRJ, और यू कैन से रैंडम वेरिएबल। तो इससे अगर आप किसी भी रैंडम वेरिएबल को कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपकी रिसीवर पे कितनी नॉइज ऐड हुई है उसका आप बड़े इजीली से पता लगा सकते हो, क्लियर। तो लास्ट में उस फंक्शन को जब उसने पूरा खोला तो उसको लिखोगे, इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो पाई N0 माइनस N0/2, एक्सपोनेंशियल को अगर पूरा ओपन करोगे इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा, तो आप इस फंक्शन की फॉर्म में लिखा जाओगे। तो इस एक्सप्रेशन का यूज हम आगे यूज करेंगे, क्लियर। सो अब हमें जो लाइक्लीहुड फंक्शन आया है, उससे हमने सिंपली क्या, लाइक हमने अभी कोरिलेटर से किसी रैंडम नॉइज की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, रैंडम फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट किया है बाय द यूज ऑफ योर, यू कैन से बैंक ऑफ कोरिलेटर्स, क्लियर। तो अब वो जो नॉइज की वैल्यू आई है, उस नॉइज की वैल्यू अगर पता चल जाए आपको, तो आप किसी भी मॉड्यूलेशन टेक्निक में, चाहे वो BPSK है, चाहे वो PSK है, चाहे कोई अदर मॉड्यूलेशन टेक्निक है, उसमें आप भी टेरर रेट का बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। तो अब मैं इस लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू जो मैंने नॉइज को कैलकुलेट करके निकाली है, उसको हम किसी मॉड्यूलेशन टेक्निक के ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो मैंने अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक बिट एरर रेट निकाला है फॉर द BPSK। तो उसमें उसने उसका एक स्पेस डायग्राम और कॉन्स्टलेशन डायग्राम शो किया हुआ है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बड़े अच्छे से डिस्कस किया है। तो आपको अगर प्रीवियस वीडियो में याद हो, इस तरफ आपको मिलता है 0 एंड EB, क्लियर, एज पर द पॉजिटिव टर्म, और एज पर द नेगेटिव टर्म आपको मिलता है 0 और EB मिला है, तो यहाँ मिलेगा -EB और 0 मिल जाएगा। इट मीन्स जो यहाँ सिग्नल रिसीव होंगे उनकी वैल्यू 1 होगी, और जो यहाँ सिग्नल रिसीव होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो दैट इज कॉल्ड योर डिसीजन बाउंड्री। So that will be create the difference among your 1 and 0। इट मीन्स अगर आपको, आपने सिग्नल ट्रांसमिट किया था 1, लेकिन वो मिला इस साइड में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 1 ट्रांसमिट किया था लेकिन वो Z1 साइड में आपको रियलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब एरर है। लेकिन अगर आपने सिग्नल 0 ट्रांसमिट किया था और वो Z1 साइड में रियलाइज हो रहा है, इसका मतलब तब भी एरर है। तो हम वो एरर निकालेंगे इन केस ऑफ योर BPSK विद योर सिंगल फेज, क्लियर। तो हमने क्या किया, उसने लिखा हुआ है S1T इज योर, अगर आपने S1T ट्रांसमिट किया था लेकिन वो आपको, बट RT इज इन, जो रिसीविंग हुई है उसकी वो कहाँ हुई है, Z2 साइड पे हुई है। अगर आपने इस साइड पे ट्रांसमिट किया तो इसी टाइप पे रिसीविंग होनी चाहिए। अगर वो इस टाइप पे रिसीव होगा तो सिग्नल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो 0 में चेंज होगी, तो इसका मतलब उस साइड में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। सेम एंड केस फॉर योर S2। तो उसने यहाँ पे 2 मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है। तो एज पर योर रूल्स आपने एज पर द बेसिस फंक्शन फर्स्ट वेरिएबल लिखा हुआ है, Z1 है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपको ये फंक्शन मिलेगा, रिसीव्ड सिग्नल इनटू सम बेसिस फंक्शन फ्रॉम 0 to TB। और जो Z2 की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 पे, ग्रेटर देन 0 पे उसकी वैल्यू क्या है आपकी, 0 है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को आपने याद रखना है फॉर द नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए। तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया है, आपने जो पीछे से एक ये फंक्शन निकाला है फॉर द रैंडम वेरिएबल्स के लिए, इस फंक्शन की वैल्यू को उसने यहाँ सिंपली पूरा लिखा है। इस फंक्शन की वैल्यू को पूरा उसने यहाँ रीराइट किया है दिस थिंग में, क्लियर। तो वहां पे सिंपली क्या किया है आपने, अगर वहां पे आपका सिग्नल आ रहा था
प्रीवियस डिस्कशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एस आई जे लिखा है, तो अगर मान लो वो S12 है, 12 मीन्स 1 पे ट्रांसमिट किया था लेकिन 2 पे रिसीव हुआ है, क्लियर, तो ये एरर आ गया है, तो यहाँ पे उसने एरर को क्या लिखा है 12, ठीक है, यहाँ उसने एरर को क्या लिखा है फ्रॉम दिस साइड 12, अगर इसका उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, वो कोऑर्डिनेट चेंज, सॉरी, ठीक है, तो S21 पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, अगर वो रॉन्ग साइड पे मिला है तो माइनस साइड पे मिल रहा है, तो उसकी सिग्नल की एनर्जी क्या होगी माइनस ऑफ रूट ऑफ ई बी, क्लियर, और बाकी सारी चीजें उसने सेम लिखी हैं, इन टर्म्स को उसने बाहर निकाल लिया, तो कैलकुलेशन के बाद आपको ये फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी रिसीव हो जाएगी, क्लियर, तो अगर आप इस टर्म को S12 लिखते हो तो यहाँ पे आपको ये सिग्नल किस में मिलेगा, प्लस में मिल रहा है, यहाँ नेगेटिव में मिल जाएगा, तो अब उस तरह आप सिग्नल S1t भी निकाल सकते हो, जहाँ पे उसने S2t निकाला है वहाँ पे S1t भी निकाल सकते हो, so the conditional probability that will be Rx decide in favor of 1 while 0 was transmitted, it means आपने 0 ट्रांसमिट किया था लेकिन वो वन साइड पे मिला, 2 ट्रांसमिट किया था वो वन साइड पे मिला, तो एरर हो गया, तो 2 साइड पे उसकी एनर्जी कितनी है ये कैलकुलेट की, अगर आप 1 2 करोगे तो उसका बिल्कुल रिवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्लियर, सो रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली, after it you can calculate your error function, you can say complementary error function, तो उसने उस चीज में भी कुछ नहीं किया है, यहाँ पे सिंपली आपने जो वैल्यूज निकाली है एज पर योर प्रीवियस मैथमेटिकल एनालिसिस, उस वैल्यू में आपने जहां आपका डेल्टा है वहां आपने ये पुट करवाया डेल्टा की वैल्यू, क्लियर, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दैट विल बी माइनस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू निकाली है वो आपकी ये वाली है 1/n0, वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट करवा दी, ठीक है, आफ्टर सम टर्म्स विल बी कैंसल आउट एंड द कॉम्प्लीमेंट सॉरी एरर फंक्शन विल बी इक्वल टू 1/2 एरर फंक्शन रूट ऑफ ई बी बाय में नोट, एंड आल्सो q, that whole term will be changed into q will be equal to 2 root of ab by में n नोट, क्लियर, तो ये चीज आपने पूरी निकाली हुई है, बाकी अगर आप इसको प्रीवियस वीडियो तक भी एंड कर देंगे तब भी आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा, फॉर योर फाइंडिंग योर यू कैन से आई कैन मेंशन बैंक ऑफ कोरिलेटर्स इन टर्म्स ऑफ नॉइज एंड द डिटेक्शन ऑफ नॉन सिग्नल इन नॉइज, इट मीन्स आपने उस पूरी कैलकुलेशन से अपनी एक नॉन सिग्नल में से अपने नॉइज को कैलकुलेट कर लिया, क्लियर, next we come with the main topic, that is your Gram-Schmidt orthogonalization procedure, clear, so mainly the Gram-Schmidt orthogonalization procedure that will be differentiate, or you can say that makes help to calculate the various signal with the full mathematically analysis, and how you can determine that particular signal which are present at your output side, either you can say orthogonal या orthonormal or various properties should be applied in Gram-Smith orthogonalization function. So that procedure will be explained with the help of one example which I show here. That is आपने अब एक सिग्नल क्या लिया हुआ है S1t लिखा हुआ और एक S2t, अगेन एक सिग्नल क्या लिया S3t और अगेन क्या लिया एक S4t, क्लियर, तो आपने क्या कर रहा है पहले सिग्नल की वैल्यू को आपने T3 तक 1 किया, अगले वाले को 2T3 तक 1, ठीक है, और थर्ड को T3 बाई से लेकर T तक 1 है वो सिग्नल, क्लियर, और नेक्स्ट में आपने 0 से T तक S4 को क्या किया है 1 किया है, इट मीन जो S4 है वो आपका 1 और 3 का कॉम्बिनेशन होगा, क्लियर, सो इट मीन्स क्यों ये 1 और 3 का कॉम्बिनेशन होगा, बिकॉज दीज टू सिग्नल्स आर linearly dependent with each other, so as per your linear dependability these two signal is called your orthonormal signal, clear, if they are not dependent it means that is called your orthogonal signal and its value equal to 0, if it is orthonormal its value will be equal to 1, so write this thing very carefully. Let us apply the Gram-Smith orthogonalization function as per your waves, either S1, S2, S3, and S4. You apply the function F1, F2, F3, and F4 for the mathematical analysis of that particular signal. So firstly, we apply the function F1 for S1t, and if you apply the Gram-Smith orthogonalization function on your F1, for your S1, you write here S1t with norms S1t with norm, clear, and if you again open these norms you can write here from under root of 0 to 2 S1t का square into में dt, clear, and the limit is आपका वो फंक्शन की वैल्यू 0 से t/3 तक कुछ वैल्यू आ रही है, देन उसके अलावा वो फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, क्लियर, तो अगर आप इस वेव को देखें 0 से लेकर T3 तक उसकी वैल्यू उसने 1 ली हुई है,
लेकिन जब आप उसके ऊपर लाइक वैल्यू निकालोगे तो उसने एक एग्जांपल लिया हुआ है, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताया कि 0 से लेकर t3 तक उस फंक्शन की वैल्यू क्या है, √3/2 है। तो वही फंक्शन यहाँ दिखाया हुआ है। इसी तरह आप फंक्शन जैसे 1 निकाला है, अब क्या निकालेंगे, फंक्शन 2 निकालेंगे एज पर योर GSO, ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनाइजेशन फंक्शन। तो वो निकालने के लिए आप सिंपली पहले क्या लिखोगे, फंक्शन 2 किससे रिलेटेड है, S2 से रिलेटेड है, माइनस में क्या करोगे S21, इट मीन है तो फंक्शन आपका S2, लेकिन पीछे से किसको कोरिलेट कर रहा है, 1 को, S21 आ जाएगा। क्लियर। देन अगेन अगर 1 को कोरिलेट कर तो फंक्शन साथ में कौन सा आ जाएगा, फंक्शन 1। अगेन यू राइट हियर सेम थिंग विद नॉर्म्स, जो ऊपर की टर्म्स लिखी है, जैसे इसमें नॉर्म्स के नीचे कोई सेम टर्म्स आई थी, यहाँ भी नॉर्म्स के नीचे क्या आ जाएगी, कोई सेम टर्म्स आ जाएगी। फिर वो सिग्नल जो आपका है वो t3 से लेकर 2t3 बाय क्या तक क्या है, √3/2। तो t बाय यहाँ पे गलत मेंशन किया हुआ है, ये फंक्शन t/3 से लेकर 2t3 तक क्या होगा आपका, √3/2 होगा। तो एज पर योर मैथमेटिकल एनालिसिस, तो आपने वही फंक्शन फिर दोबारा मेंशन किया हुआ है, ये वाला। ठीक है। तो अगर आप Sij यहाँ पे अगर फंक्शन क्या आ रहा है, अलग फंक्शन आ रहा है, वो क्या आ रहा है आपका S21, इट मीन I और J की फॉर्म में आ रहा है। तो अगर इसको रीओपन करो अच्छे से, तो आप लिखोगे फ्रॉम 0 to t एज पर योर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज Si t इंटू में Fg t इंटू में dt। तो आप इस पूरी टर्म्स की जगह ये फंक्शन भी फीड करवा सकते हो। तो मेनली यहाँ पे क्या है आपका, S21 के अकॉर्डिंग आपका S तो 2 है, लेकिन फंक्शन कौन सा है, 1 है, तो वही चीज मैंने राइट करवाई हुई है। क्लियर। तो वो भी फंक्शन आपका सेम आएगा। तो फंक्शन आपका क्या आ रहा है, अगर फंक्शन 3 देखें तो फंक्शन की 3 की वैल्यू भी कैसे निकालोगे आप, जो भी लिखोगे यहाँ पे 2 से 3 पे जाएगा फंक्शन 2 3 आ जाएगा, या फंक्शन 2 आ जाएगा, वही सेम टर्म्स में आ जाएगी, नॉर्म्स में आ जाएगी, तो वहां से फंक्शन 3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर। तो अगर एज पर दी आप फिगर देखें तो वो फंक्शन आपका 2t3 से लेकर t तक वो क्या है, √3/2 है। तो वही मैंने अपनी प्रीवियस साइड पे लिखा, 2t/3 से लेकर t तक वो सिग्नल क्या आपका √3/2 है, और एल्सवेयर क्या है आपका 0 है। इट मीन्स क्या हुआ, ये क्या बन गया आपका, आपने एज पर दी फंक्शनैलिटी पर्पज हर एक फंक्शन की क्या निकाली, एक प्रॉपर वैल्यू निकाली है, और उस प्रॉपर वैल्यू को अपने अपने फिगर के अकॉर्डिंग क्या किया है, ड्रा किया है। अब मेन पॉइंट क्या आता है कि जब हम S1 निकाल रहे हैं, S1 फंक्शन जो है √3/2 तक वो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसका मतलब अगर आपने एक S1 लिया, उसके 3 कोऑर्डिनेट शो किए हुए हैं, F1 F2 एंड F3, तो अगर फंक्शन 1 कंसिडर कर रहे हो तो उसी की वैल्यू आएगी, बाकी के दो फंक्शन क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। और जब S2 निकाल रहे हो तब आपके पहले दो फंक्शन आए, तीसरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई है, 0 हो गई है फ्रॉम सेकेंड वन। और थर्ड वन में आपको थर्ड फंक्शन आपको 0 से t3 तक मिल ही नहीं रहा है, तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, और बाकी के दो फंक्शन आपस में क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। ठीक है। एंड S4 में अगेन √3 √t/3 एंड √t3/2. So by these things we can decide your three-dimensional structure with F1t, F2t and your F3t. So today topic will be discussed about your you can say your response of bank correlated to noise input and detection of known signal in noise, and another procedure is called your Gram-Schmidt orthogonalization procedure. So both the topic as per the exam point of view is very important for you. So thank you for listening my lecture. Thank you very much.